Goedemiddag, aap sabhi ko, namaskar. Welkom bij de organisatie Hindoe Media. Vandaag kunt u kijken naar het eerste deel van de documentaire over de Baith Gana. Baith Gana is een muziekgenre dat erg populair is bij Hindoestanen. Het gaat hier om typisch Surinaams-Hindoestaanse volksmuziek, ontstaan in de periode van de contractarbeid op de plantages. In dit eerste deel presenteren wij u een historische schets van de ontwikkelingen van de Baith Gana op Surinaamse bodem. Baith Gana is niet weg te denken uit de Surinaamse samenleving. Ieder feest of festival wordt opgeluisterd met de traditionele volksmuziek van de Kentrakis, de Indiase contractarbeiders. Terwijl in de keuken voorbereidingen worden getroffen om de gasten op een waardige wijze te ontvangen, zitten in een tent op het erf de muzikanten om luistermuziek te presenteren. Bij de Baith Gana gaat het om het maken van muziek door tenminste 3 personen. Baith Gana betekent letterlijk zitten zingen. De muzikanten zitten op de grond om elkaar goed in de gaten te kunnen houden. Op die manier wordt dan een samenspel ontwikkeld welke leidt tot een ware extase. De muziek wordt gemaakt door slechts 3 instrumenten: de dholak, de dentaal en het harmonium. माथे की बेदी मोरी तोरी रे मरोरी डारी चुनरी पारे अरु चुनरी बोरी डारी माथे की बेनी मोरी तोरी रे मरोरी डारी माथे की बेनी मोरी चुनरी पारे अरु चुनरी डारी माथे की बेनी मोरी तोरी रे मरोरी डारी चुनरी पारे अरु चुनरी बोरी डारी मोरी तोरी रे मरोरी डारी चुनरी पारी यार चुनरी बोरी डारी सावर प्यारे में तो फारी कजी कदी बेचन ना जामूगी कजी कदी बेचन ना जामूगी जगरा चलत मुस्कीन रात रे जगरा चलत मुस्कीन रात कदी बेचन ना जामूगी त्रिकिट ताऊ दिलांग दिम दीवन नाद दानी दादी दारी तुम ताना ना 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 हाय त्रिकिट ताऊ दिलांग दिम नाद दानी तुम ताना ना 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 तना ना 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 मन भाई गई रे तना ना 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 मन भाई गई बेचन ना जाऊंगी कभी बेचन ना जाऊंगी तगड़ा चलत मुस्कीन राज रे तगड़ा चलत मुस्कीन राज कभी बेचन ना जाऊंगी हरी कभी बेचन ना जाऊंगी अरे तगड़ा चलत मुस्कीन राज कभी बेचन ना जाऊंगी हरे कभी बेचन ना जाऊंगी तगड़ा चलत मुस्कीन राज रे तगड़ा चलत मुस्कीन राज In de emigratieperiode hebben de contractanten in Suriname in vergelijking met de slaven een grotere vrijheid genoten bij de beleving van de eigen religie en cultuur. देखा जब हम लोग के बाप दादा लोग आए ने भारत से तो एक समय वो लोग के नौकरी चाकरी में समय बितावे के पड़ल, लेकिन नौकरी चाकरी के साथ साथ में वो लोग के भी अरमान रहा कुछ अपन गाना बजाना करते रहेंगे. De Surinaamse Baith Gana muziek is qua stijl nauw verbonden met de volksliederen van Bihar en Uttar Pradesh. Immers de liederen en vooral de melodieën werden als culturele bagage vanaf 1873 meegenomen naar het nieuwe vaderland. Het ging in eerste instantie om bruiloftsliederen, sogers en birahas. हम लोग के बाप दादन आइडनी देश में बहुत रकम के साज
शैली गीत, शैली बाजा लय के। लेकिन आज चर्चा है बैठक गाना पर, तो हम बैठक गाना के बारे में बता दें आपसे कि हम लोग के बाप दादा लोग जब हिंदुस्तान से चलिन तो कोई बेचारा सरंगी, कोई चिकारा, कोई ढोल बांधे आइन और कोई मजीरा। Na het werk op de plantages kwamen de mensen in de avonduren bijeen. Dit gebeurde ook tijdens bruiloften en andere hoogtijdagen. Op deze bijeenkomsten, de zogenaamde Beithuks, werden er verhalen verteld, muziek gemaakt en ook toneel gespeeld. हम लोग के जाति में एक कठिन धन है। वो धन बा कि वो लोग हमेशा अपने अपने परिवार के साथ अपने देवतन के, महापुरुष लोग के और राजा महाराजा के बात भी याद रखत रहने। वो मन वो लोग खिस्सा, कहानी, रामायण, महाभारत आदि की बात की भी चर्चा करत रहे। In de begintijd van de contractarbeid werd toneel al gauw het belangrijkste spektakel. Elk jaar werden in de diverse leefgemeenschappen koningsspelen, de zogenaamde Roghenke Natak, opgevoerd. Het ontstaan van de Beit Hagana moet dan ook gezocht worden in dit Sernami toneel. नाटक में हमेशा साज पहला नंबर के, उसमें खूब साज बजे और पहले के नाटक में छंद में गाना होत रहा, खदेख्ता में गाना होए और सारे विषय जो इन होत रहा वो अपने खदेख्त में ला करके राजा रानी और सिपाही, सेनापति, मंत्री सब गावत रहे। De Beit Hagana heeft haar typische vorm gekregen op Surinaamse bodem. Deze muziek werd in het begin beoefend met de dholak, de ghungroe, de majira en de sarangi. Het harmonium heeft pas later haar intrede gedaan. Inhoudelijk kenmerkt deze muziek zich door ernst, humor en erotiek. Hij dient niet alleen om mensen te amuseren, zoals bij de Londa Kenaj. In al die liederen is vaak een sterke moraal aanwezig. De inhoud van de eerste Beit Hagana-liederen waren religieus van aard. Dit muziekgenre was in de contracttijd onder een andere naam bekend. पहले हम जब छोटा रहे तो हम सुन रहे थे, लोग कहते थे महफिली गाना। अचानक ऐसे लोग बैठक गाना कहे लगल। तो बैठक गाना की शुरुआत हम नाम से शुरू करें तो इसलिए कि पहले ज़माना में हर एक चीज़ लोग बैठ के करते थे। ब्याह शादी हर एक चीज़, आप नौता हकारी में जाओ तो कोई कुर्सी उर्सी न था। उस ज़माना में पैरा में बैठो, ज़मीन पर बैठो, गाना भी होता था, साज और संगीत, तो ज़मीन पर बैठ कर हर एक काम हो सकता है कि उसी लिहाज से, उसी सबब से लोग भी कहें कि चलो भाई ये भी बैठक गाना हो गया है। जहाँ तक मुझे मालूम है तो जो शब्द है बैठक गान, उस समय लोग प्रयोग में नहीं लाते थे। लोग कहते थे आज वहाँ पर तान होगी या उस महीने में वहाँ पर तान होगी, ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाते थे। और तान के मतलब था कि लोग बैठ करके अपना भजन भाव, कव्वाली जो भी कुछ हैं पेश करते थे। उसमें बहुत कुछ संदेश आता था। वो संदेश भरी सब लोग अपने भजन भाव में प्रचार करते थे, लोगों को उत्तेजना देते थे, अपना धर्म, अपना कर्म, अपनी जाति, अपनी संस्कृति का। गोविंद माधो श्याम ने दिल तो मेरा ले दिया, गोविंद माधो श्याम ने दिल तो मेरा ले लिया, गोविंद माधो श्याम ने कृष्ण कृष्ण मैं पुकारो तेरे दर के सामने, बंसी वाले अपने
बंसी वाले अपनी बंसी तू बजा दे आन कर, तेरे चर्चा हम करेंगे हर सुबह यो शाम के, तेरे चर्चा हम करेंगे हर सुबह यो शाम के। दिल तो मेरा ले लिया गोविंद माधो श्याम ने, कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं। हमसे प्रहलाद के, हमसे प्रहलाद के तुमने बचाए जिस घरे, हमसे प्रहलाद के तुमने बचाए जिस घरे। देखा बैठक गाना में जो धुन है वो तो अलग अलग है ना। और धुन में भजन भी सुनावत रहे, धुन में इतिहास भी सुनावत रहे, और धुन में प्रेम गीत, और धुन में ठिठोली भी। हर कल युग तेरी बलिहारी, तू सबके नाच नचाता है। एक कलब में पिता पुत्र देखो मिलकर कमर हिलाता है। हर ना तो पूरी बांधी चोली, और ना घुटने तक लहंगा। हर सस्ती हो गई लाज शर्म की, कपड़ा हो गया महंगा। हर भुई डोले बालम की भुई डोले बालम, भुई डोले बालम की भुई डोले। पातर चोरी कहीं अन्या लहंगवा भुई डोले बालम, पातर होय होय पातर चोरी कहीं अन्या लहंगवा भुई डोले बालम। भुई डोले बालम की भुई डोले बालम, भुई डोले बालम, भुई डोले बालम। पातर हाय हाय पातर चोरी कहीं अन्या लहंगवा भुई डोले बालम, पातर चोरी कहीं अन्या लहंगवा भुई डोले बालम। अब ही तो है मोरी बारी उमरिया की बारी, उमरिया बारी उमरिया की बारी उमरिया। अब ही तो है मोरी बारी उमरिया की बारी, उमरिया बारी उमरिया की बारी उमरिया। सैया तो आगे से गरिया, सैया तो आगे से गरिया। लहंगमा भुई डोले बाल, पातर होय होय पातर चोरी कहीं अन्या लहंगवा भुई डोले बाल, पातर चोरी कहीं अन्या लहंगवा भुई डोले। सास मोरी सोवे ननद मोरी जागे, ननद मोरी जागे, ननद मोरी जागे, ननद मोरी जागे। सास मोरी सोवे ननद मोरी जागे, ननद मोरी जागे। धीरे से आजा से गरिया, धीरे से आजा से गरिया। लहंगमा भुई डोले बाल, पातर हाय रे पातर चोरी कहीं अन्या लहंगवा भुई डोले बालम। Na de contractperiode werd voor de contractanten en hun nakomelingen de meegenomen culturele en religieuze bagage belangrijke steunpilaren bij de opbouw van een nieuw bestaan. Daarbij hebben de Beit Ghana-groepen een voorname rol gespeeld. De groepen hebben echt gezorgd voor een sociale cohesie van de Hindoestaanse gemeenschap.
Aan de ene kant is het de muziek geweest. Aan de andere kant is het Suriname geweest dat de mensen helemaal bij elkaar gebracht heeft doordat ze één taal ontwikkeld hadden. En de religie. Het hindoeïsme in de vorm van Vishnuïsme en de islam. Deze 3 pijlers hebben de Hindoestaanse gemeenschap een eigen gezicht in Suriname gegeven. Bij de Beit Hagana gaat het vaak om melodieën waarbij de muzikanten voorgeschreven ritmes spelen. Echter, er is behoorlijk veel ruimte voor improvisatie. Enkele melodieën waarbij de dholak en de zanger vaste ritme hebben zijn Drupad, Tillana, Thumri, Dadra, Bhairavi en Langri. Vanaf de jaren 20 heeft de Beit Hagana tot eind jaren 50 een grote ontwikkeling doorgemaakt. Dit mede als gevolg van programma's op het radiostation Avros. In de jaren 30 zond dit radiostation elke vrijdagmiddag een programma van een uur uit. Nadien is deze traditie overgenomen door Radio Rapar, Radio Apinti en Radio Radica. Na de Tweede Wereldoorlog, maar vooral in de jaren 50, ontwikkelt deze muziek zich tot literaire muziek van hoge kwaliteit. Religie speelt niet langer een voorname rol. Geïnspireerd door het leven op de plantages worden de Beit Hagana bhajans en qawwalis wereldlijk van aard. Wat de inhoud van het gebrachte betreft, daar kan ik zeggen dat op elk gebied men muziek heeft gespeeld en gezongen, liederen gemaakt en gezongen. Bij de Biraha-stijl heeft men zelf alle mogelijke commentaren gegeven op politiek en andere gebeurtenissen. Maar in de liederen die men hier zelf gemaakt heeft, heel populair is de bhajan-stijl geweest. En een van de belangrijkste bhajans die in Suriname een geweldige rol heeft gespeeld in de jaren 1949, is van Sabal Singh geweest. Die beroemde bhajan van hem, in bhajan-stijl van Khabardar Raho Hindustani. Dat is toen een hele belangrijke rol heeft het gespeeld in de ontwaking van de Hindustanen. Want u weet, na de Tweede Wereldoorlog is zowel de intellectuele als de politieke ontwaking van de Hindustanen begonnen. Vandaar dat ook politieke partijen altijd de muziekgroepen hebben ingeschakeld om overal mee te gaan en muziek te maken en dergelijke. Er worden speciale liederen gemaakt voor politieke doeleinden, waarbij leiders worden bezongen, programma's worden uitgelegd, tegenstanders worden bekritiseerd. धीरे हवा में पतंगे उड़ाओ टूटे न पावे डोरिया धीरे हवा में पतंग उड़ाओ टूटे न पावे डोरिया धीरे हवा में पतंग उड़ाओ टूटे न पावे डोरिया धीरे हवा में पतंग उड़ाओ टूटे न पावे डोरिया पतंग के बीचे चढ़ते शोभे भारत की चारों ओरिया पतंग के बीचे चढ़ते शोभे भारत की चारों ओरिया कौन नेता पतंग बने हैं कौन नेता डोरिया कौन नेता पतंग बने हैं कौन नेता डोरिया कौन नेता पतंग बनावे कौन बनावे डोरिया कौन नेता पतंग बनावे
सुभाष नेता पतंग बने हैं, वीर जवाहर डोरिया। सुभाष नेता पतंग बने हैं, वीर जवाहर डोरिया। गांधी जी ने पतंग उड़ावे, गांधी जी ने पतंग उड़ावे, भगवान बनावे डोरिया। गांधी जी ने पतंग उड़ावे, भगवान बनावे डोरिया। De बैठक Ghana bereikt haar hoogtepunt in de jaren 50. Twee muziekgroepen die in deze periode een belangrijke rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van dit genre zijn de Oranje Band van Deo Mangal en de Noor Band van Noor Pir Khan. नूर बैंड और औरैया बैंड उन दिनों में मशहूर ग्रुप थे। उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये दो थे, और था हरी जो मारियम बेरफ के है, साहिब इस्माइल, बहुत से ऐसे ग्रुप था उसी ज़माने में। मगर ये नाम, मगर इन सबों का स्टाइल एक ही स्टाइल था। ये लोग भजन गाते थे और कवाली गाते थे, ज़्यादा तौर पर भजन और कवाली। और नहीं जैसे त्रिनाद में लोग ठुमरी और भैरवी वगैरह कहते थे, मगर यहाँ भजन और कवाली। मगर मैं एक बात आपके बता दूं कि भजन और कवाली एक स्टाइल होता है। भजन में आप मान लो उसमें ताल नहीं कभी होता है, एक रिदम पर भजन जाता है। कवाली है उसमें ताल होता है। कवाली तो लोग क्या कहते थे पहले कि जहाँ पर आप कोई धार्मिक गाना गाओ हिंदू धर्म पर, तो लोग कहते हैं ये भजन है, हालांकि वो कवाली स्टाइल पर गाया। मगर कवाली एक मुसलमान मजहबी गाना नहीं होता है, वो एक स्टाइल होता है। उसमें आप किसी मोहब्बत के गाना गाओ या एक रसूलुल्लाह के या एक नबी के या खुदा के तारीफ गाओ, बल्कि वो कवाली रह जाता है। Een van de pioniers die zich verdienstelijk heeft gemaakt in deze fase is de nu 80-jarige Mehilal Kalpu. बचपन से हमें गाना के बहुत शौक रहा, और उस ज़माने में परमारी बहू में इस्माइल चाचा एक बहुत ऊंच कोच के गायक रहा और एक भोटा हिंदुस्तान के रहा। तो इन दोनों में खूब गाना होता, हम बैठ कर खूब सुनते रहे गाना उन लोगों के, और सुनते सुनते अच्छा प्रभावित हो गए रहे गाना पर। और उस शायद ये संगीत वगैरह गाना वाना के लोग बहुत प्यार करते रहे, खूब जुट के खूब सुनते रहे सब। तो भाईलाल अपने हारमोनियम बजाए के गावलाप इत्यादि खूब मार के, और दादी ने उनका एक भाई रहा वो ढोलक बजावत रहा। तो जब हम सुन ली कुछ कुछ गाना के भाव रहा, जब हम सुने उनकर आवाज़ अलाप तो हमें सब भूल गए। हम सोचे ना ये आदमी के पाछा धरे के चाहिए, यही ढंग पर गाना गावे के चाहिए। तो उनसे खूब प्रेम हो गए, तो हम लगे उनकर विषय लेवे। Deze periode wordt gekenmerkt door veel eigen composities. Daarnaast worden ook veel liederen gezongen uit bestaande religieuze boeken. जितने गाना गाते रहे सब, तब पुस्तक किन किन की रामदीन एगो रहा, हिंदुस्तान से पुस्तक मंगावत रहा। तब हम गए रामदीन यहाँ, वो शायद 5 चौनी मिलत रहा एगो पुस्तक, वो बहुत सस्ता रहा। तब हम 2 कीन के लाएँ, पंडित भाईलाल बनावत रहे, एक आध गाना बनाई से रहे। तो उनके सुन सुन के कितने वह के गाना मुझे याद है। तो मैं पुस्तक से ज़्यादा हम काम लेते रहे। देखो यहाँ पर एक भजन में आयल है, ये है गज़ल। देखो इसमें ज्ञान कितना है। पिताजी सर्व जीवों के चलन सारे ही सच्चे हों, बसे भूगोल में जितने सुजन सारे ही सच्चे हों। न बोलें सैकड़ों बानी को, ओम संगच्छध्वम पर पग रखें, उच्चारे वेद बानी को, कथन सारे ही सच्चे हो। तो ये हम लोगों के ज़माना में यही सब गाना वाना होता रहा, लेकिन अब ये सब चीज़ जो है मीटत चला जा रहा है। Pandit Ramchandar Bansidhar wordt op dit moment gerekend tot een van de grootste बैठक Ghana-zangers in Suriname. Naast zijn activiteiten als kleine landbouwer en priester maakt hij veel tijd vrij om de echte बैठक Ghana ten gehore te brengen. पहले ज़्यादा होता रहा बैठक गाना प्रश्न उत्तर। मान ले हम दयानंद के गाना गैली, तब तू जना दान दयानंद के गाना तो तू गिर गए। तो
हम राम के गाना उठैली, राम बनवास गए, राम का करिस, राम ना का करिस, का ना करिस, तब तो के जवाब दे चाहिए हमारे गाना पर। तो इस तरह के गाना होता रहा। अब तो मिक्सअप हो गए। देखो ये हम लोग प्राचीन कला है, प्राचीन मतलब पुराना कला है, और एमन जौन रहस्य जौन मजा है, अब तो तनी रॉक एंड रोल हो गए। पहले रॉक एंड रोल ना रहा, पहले खाली प्रचार होता रहा को धर्म के, वैदिक धर्म के, सनातन धर्म के, मुसलमान के, मजहब के। तो बैठक गाना में यही मजा है कि मनई अपने आप के भूल जाए। संसार की भार उतारने को श्री विष्णु तुम्हारी जय होवे, मही भारन भार उतारन को हे नाथ तुम्हारी जय होवे। एरी दीन हूँ मैं, बलहीन हूँ मैं, आधीन हूँ मैं, शरणागत हूँ, इस दीन का तू द्वार करो, हे नाथ तुम्हारी जय होवे। प्रथम मान ओंकार, ये प्रथम मान ओंकार, देवन में महादेव ज्ञान मान नारद। प्रथम मान ओंकार, देव मान, प्रथम मान ओंकार, देव मान महादेव, ज्ञानियों में नारद मुनि, वेद मान ब्रह्मा, ज्ञानियों में नारद मुनि, वेद मान। प्रथम मान ओंकार, प्रथम मान ओंकार, वेद मान ब्रह्मा, ज्ञानियों में नारद मुनि। विद्यामान सरस्वती, नदी मान गंगा, विद्यामान, विद्यामान सरस्वती, नदी मान गंगा, कीन मान सूरज राय, जैन मान चंदा। विद्यामान सरस्वती, नदी मान गंगा, विद्यामान सरस्वती, नदी मान गंगा, विद्यामान सरस्वती, नदी मान गंगा, तीन मान सूरज आए, रंग मान चंदा। विद्यामान सरस्वती, नदी मान गंगा, दीन मान सूरज आए, रैन मान चंदा। गीत को संगीतम, संगीतन को अक्षर माने, अक्षरन को सुर माने, नित्य लंबा। कहे मियां तानसेन सुनो ब्रिज बाबरे, कहे मियां तानसेन सुनो ब्रिज बाबरे, कहे मियां तानसेन सुनो ब्रिज बाबरे, छूट जात तान बाने रहता। प्रथम मान ओंकार, देवन मेरे महा